بلٹن میں خوش آمدید۔ اب آپ کو بتائیں کہ آئین میں تبدیلی سے متعلق صوبائی مشیر برائے کچی آبادی کا رد عمل۔ نجمی عالم کہتے ہیں کہ آئین انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے جس میں وقت اور حالات کے ساتھ تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ ملک میں 27ویں کیا اور ترامیم بھی آ سکتی ہیں۔ جہاں ضرورت ہوگی آئین میں تبدیلی آئے گی۔ ہمارے نمائندے شعیب مختار اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی شعیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد جو ہے اب 27ویں ترمیم پر بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں صوبائی مشیر نجمی عالم۔ سر یہ بتائیے گا، 26ویں ترمیم جو ہے پیپلز پارٹی کی بڑی جدوجہد رہی اور آخرکار منظور بھی ہوئی، تمام جماعتوں نے مل کر فیصلہ کیا، لیکن اب بات ہو رہی ہے کہ 27ویں ترمیم بھی آئے گی، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، آئین کوئی صیغہ آسمانی تو ہے نہیں، انسان کے بنائی ہوئی چیز ہے۔ وقت و حالات کے ساتھ اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں کہ آج کے حالات میں یہ چیز ضروری ہے۔ 27ویں کیا اور 20 ترمیمیں آ سکتی ہیں، جب 26 آ سکتی ہیں تو اور 20 ترمیمیں بھی آ جائیں گی، تو جہاں ضرورت ہوگی آئین کو میں تبدیلی لائی جائے گی۔ یا دیکھیں گے کہ یہ چیز اب کور نہیں ہو رہی، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے عدلیہ کو بہتر کرنے کا سوچا تو ہم نے 26ویں ترمیم لیا ہے، اور ایشوز ہیں تو ان کے لیے 27ویں بھی آ جائے گی۔ اس میں کوئی کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور انشاءاللہ اور ہماری جو پہلے کوشش رہی کہ سب کو ملا کر کریں، اسی طرح سے ابھی بھی ہم ملا کے ہی کریں گے، سب کے ساتھ بیٹھ کے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح 26ویں ترمیم میں تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر فیصلہ کیا، اسی طرح سے اگر 27ویں ترمیم آئی تو تمام سیاسی جماعتیں ملک کے مفاد میں جو ہے وہ فیصلہ کریں گی، اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے سیاسی و معاشی، اس میں تمام جماعتوں کو جو ہے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جی شہر میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ سرجانی ٹاؤن کے سیکٹر 6B میں روزانہ 4 بار 3 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ، علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ اقصیٰ شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ شہریوں کے معمولات زندگی متاثر۔ شاہ فیصل، کورنگی، محمود آباد، رنچھوڑ لائن کے بعد سرجانی ٹاؤن میں بھی 3 گھنٹے کی 4 بار طویل لوڈ شیڈنگ جاری۔ خواتین کے الیکٹرک اور حکومت پر برس پڑی، کہتی ہیں اگر بجلی نہیں دی جاتی تو مہربانی کر کے بل بھی نہ دیا جائے۔ نہ یہاں پہ پانی ہے، نہ یہاں پہ بجلی ہے۔ جو بجلی ہے نا وہ کے الیکٹرک والے کنڈے دے دیتے ہیں، سارے میں کنڈے بانٹ کے اور پیسے خود کھاتے ہیں۔ اعلامیہ جو انہوں نے اعلان کیا ہوا 3 گھنٹے کا، اس کے علاوہ بھی بیچ میں انسپیکٹڈ کسی وقت بھی لائٹ چلی جاتی ہے۔ ہم بالکل ذہنی معاوف ہو کے رہ گئے ہیں، کسی احتجاج کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ گیس ہے، وہ گیس کا بھی یہ حال ہے، پانی ہے، یہاں پانی بالکل نہیں آتا میٹھا۔ حکومت سے طالبات بھی نالا، کہا کہ کس طرح اچھے طلبہ بنے، گھروں میں سکون ہی نہیں۔ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے تو لائٹ نہیں ہوتی، ہر 2 دن بعد رات کو 3 بجے سے 6 بجے تک لائٹ نان سٹاپ جاتی ہے۔ روٹین میں شامل ہے، مطلب یہ تو ہے یہی۔ پھر 3 گھنٹے کی لائٹ ہر 2 گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد جا رہی ہے، تو 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے لائٹ نہیں، مگر بل اتنے ہی دگنے۔ ہزار چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے لائٹ نہیں ہوتی، موٹر نہیں چل رہی، پانی ہو تو لائٹ نہیں ہوتی، لائٹ ہو تو پانی نہیں ہوتا، گیس نہیں ہوتی، کبھی کبھار بہت سارے پرابلمس ہوتی ہیں کہ کوئی فیس کر ہی نہیں پاتا، کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جلد حل کرائے۔ شہر قائد میں منافع خوروں کی منمانیاں جاری۔ ایل پی جی کی سرکاری قیمتوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ ایل پی جی سرکاری قیمت 254 کے بجائے 280 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں دیکھیے۔ اوگرا کے نرخ نامنظور، ایل پی جی مافیا کی منمانی۔ شہر میں ایل پی جی 254 کے بجائے 280 روپے کلو میں کھلے عام فروخت ہونے لگی۔ دکاندار کہتے ہیں مہنگی ایل پی جی کی ذمہ دار آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں، ریٹ وہ بڑھاتے ہیں، دکاندار کا کوئی عمل دخل نہیں۔ سپلائر بھی اپنے کمیشن رکھتا ہے، پھر ہم نے بھی آگے بیچنی ہوتی ہے تو ہم بھی کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، اس وجہ سے 280 روپے ریٹ دے رہا ہے۔ شہری بولے چھٹی کے دن گیس غائب ہے، مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہیں، سرکاری نلکوں پر عمل درآمد کرایا جائے۔ مجبور ہمیں مہنگی گیس ڈلوانی پڑ رہی ہے، تو کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ ہماری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ اس بارے میں کچھ نظر ثانی کی جائے۔ ہم جیسے غریب لوگ بہت مہنگی ہم لوگوں کو گیس پڑ رہی ہے۔ یہ گیس ہمارے دیکھو سارے دن مزدور ہیں، گھر آتے ہیں، گیس نہیں ہوتی، کھانے کی پریشانی ہوتی ہے، ہوٹل پہ لیتے ہیں، کیا کریں ہم لوگ بتاؤ، ہم غریب کیا کریں؟ ہم اتنا ایل پی جی لے نہیں سکتے، گیس کام آتے ہیں، کیا کریں آپ؟ اوگرا کی جانب سے نومبر کے لیے ایل پی جی کی فی کلو قیمت 254 روپے 19 پیسے مقرر کی گئی تھی۔ کیمرامین نوید کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ کراچی میں پارکس اجڑنے لگے۔ کورنگی کے ایریا کا الحبیب پارک ہستہ حالی کا شکار ہو گیا۔
पार्क को कंक्रीट एरिया में तब्दील कर दिया गया। मजीद जानते हैं मुमताज शिगरी की रिपोर्ट में। पार्क वीरान, पानी का बहरान, सड़कें तबाहाल, आखिर शहर काहिद को किसकी नजर लग गई? कोरंगी के एरिया में पार्क खंडर में तब्दील हो गया। अलहबीब पार्क कई सालों से कंक्रीट एरिया में तब्दील। इलाका मकीन बल्दियाती इदारों पर फट पड़े, कहा हमारे बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं, बच्चे जाएं तो जाएं कहां? पार्क की ग्रिल्स नशा करने वाले ले गए। कई बार दरख्वास्त के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। भाई बहुत मुश्किलात का सामना है। इधर 25-30 सालों से ये पार्क ऐसे ही देख रहे हैं। बच्चे बेचारे गलियों में खेल रहे होते हैं। गिरिले वगैरह पहले लगी हुई थी, ये हिरोनी चरसी मवाली सब ले गए, इसको खल्लास कर दिया पार्क को बिल्कुल। शहरियों ने मेयर कराची समेत बल्दियाती इदारों से दरख्वास्त की है कि जल्द अज जल्द पार्क की मुकम्मल बहाली के लिए इक़दामात किए जाएं। मुमताज शिगरी, सिटी 21। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद गनी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन का अहम इजलास। 30 नवंबर को निश्तर पार्क में पीपल्स पार्टी के योम तासीस से मुतालिक जलसे की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर सईद गनी का इजलास में मज़ीद कहना था कि योम तासीस के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात का इनकाद किया जाएगा। जलसे की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू की जा रही हैं। योम तासीस के हवाले से मुनक़िद होने वाले जलसे के लिए शहर भर में कैंप लगाए जाएंगे और बैनर्स भी आवेज़ा किए जाएंगे। इस बार कराची के अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब कराया, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। कराची डिवीजन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स और उनकी तंजीमों और टाउन्स तमाम ज़िली तंजीमों के ओहदेदारान और कारकुनान को बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। वक़ार मेहदी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के तहत कराची के मसाइल को हर सूरत तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। बल्दिया उस्मा कराची शहर से तजावज़ात ख़त्म करने के लिए मुतहरिक। तजावज़ात के खिलाफ कल से ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान। सीनियर डायरेक्टर अमार खान कहते हैं तजावज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से ज़िला जनूबी और कुरंगी में तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ शेड्यूल। शाह फैसल कॉलोनी, ओल्ड सिटी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों से तजावज़ात ख़त्म किए जाएंगे। पूरे कराची में मरहला वार ऑपरेशन होगा। किसी को भी तजावज़ात कायम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अमार खान ने वाज़ेह कर दिया। शहर में सब्जियां सरकारी निरखों पर फरोख्त न हो सकी। सब्जी फरोशों ने कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। आज भी सरकारी और बाजारी कीमतों में वाज़ेह फ़र्क है। लहसुन सरकारी कीमत 667 के बजाय 800 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगा। अदरक की सरकारी कीमत 460 रुपये है, जो बाजार में 600 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है। मेथी सरकारी कीमत 115 की बजाय 180, टमाटर 168 की बजाय 220 रुपये किलो में दस्तयाब है। प्याज 127 के बजाय 160 और आलू 104 रुपये के बजाय 160 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। इस तरह दीगर सब्जियां भी सरकारी कीमतों से महंगी बेची जा रही हैं। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी रही। हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 97,798 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान पहली बार इंडेक्स 99,000 से ऊपर ट्रेड हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। शरह सूद कम, हिस्सेस बाजार गर्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ता मुस्बत साबित। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स में 3034 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 3.20% इजाफे से 97,998 की सतह पर बंद। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 99,623 और कम तरीन सतह 94,622 रही। एक हफ्ते में 172 अरब रुपए मालियत के 4 अरब 95 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। माहिरीन का कहना है कि बेहतर होते माशी आदादोशुमार और शरह सूद कम होने पर कारोबार में तेजी रही। मार्केट इतनी ज्यादा बढ़ गई तो हमने देखा कि मार्केट ब्रेकआउट कर देती है अपनी जो रेजिस्टेंस लेवल्स में। मार्केट ने हम देखा कि कल मार्केट ने 95,800 के लेवल्स को ब्रेक किया, 96 को भी क्रॉस कर लिया। मार्केट हमें लग रहा है कि 97,000 इंडेक्स के आसपास कहीं प्रॉफिट टेकिंग और रेजिस्टेंस शो कर सकते ही। इन लेवल्स के ऊपर आके थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक शेयर्स की कीमत बढ़ने पर एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 311 अरब रुपए इजाफा हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,518 अरब रुपए पर पहुंच गई। अशरफ खान, सिटी 21।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 9 पैसे जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 13 पैसे महंगा हो गया और ओपन मार्केट में एक हफ्ते में यूरो 3 रुपये 9 पैसे और बरतानवी पाउंड 2 रुपये 31 पैसे सस्ता हुआ। करेंसी मार्केट हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे इजाफे से 277 रुपये 76 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 13 पैसे इजाफे के बाद 278 रुपये 77 पैसे पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूरो 3 रुपये 9 पैसे सस्ता होकर 289 रुपये 88 और हफ्ते में बरतानवी पाउंड 2 रुपये 31 पैसे सस्ता होकर 348 रुपये 81 पैसे का हो गया। एक हफ्ते में यूएई दिरहम 4 पैसे इजाफे से 76 रुपये, एक हफ्ते में सऊदी रियाल 2 पैसे इजाफे से 74 रुपये 20 पैसे का हो गया। अजीज़ाबाद में दिल के अस्पताल जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। शहरी कहते हैं 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, सड़क नहीं बनाई गई। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए अजियत का सबब बनने लगी। अजीजाबाद नंबर 2 में अमराज कल्ब अस्पताल जाने वाली सड़क पर खस्ता हाली के बाइस ट्रैफिक जाम और हादसात मामूल बन गए। एम्बुलेंस आती है वो फंस जाती है, खड्डे रोड काफ़ी 2-2.5 साल से मतलब बना ही नहीं है ना। अब आप खुद हाल देख लें क्या हाल है यहाँ पर। एम्बुलेंसें कितनी आती है कितनी जाती हैं और तब्बा हॉस्पिटल है, बिल्कुल सामने ही तब्बा हॉस्पिटल है। कोई मतलब पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं यहाँ पे। मकीन कहते हैं सड़क आखिरी बार 2 साल कबल बनाई गई थी। सेवरेज की लाइनों के लिए होने वाली खुदाई के बाद इदारों ने अस्तरकारी नहीं की। खस्ता हाल सड़क के 22 एम्बुलेंस को मुश्किलात का सामना है। पर 2.5 साल हो गए, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी रिसेंट में यहाँ पे एक वाटर सप्लाई की लाइन भी गई है, पर रोड कारपेटिंग का या रोड को बेहतर करने का कोई दिमाग या कोई सोच बनती नजर आ नहीं रही अब तक पिछले 2.5-3 साल से। शहरियों ने दरख्वास्त की है कि टाउन चेयरमैन मामले को संजीदगी से लें ताकि शहरी हादसात से महफूज रहें और अस्पताल जाने वाली एम्बुलेंसेस को भी परेशानी से निजात मिल सके। कैमरामैन जानशेर के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। अब आपको लिए चलते हैं जहां अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान तकरीब से खिताब कर रहे थे। तकरीबन 15-17 करोड़ लोग 30 साल तक की उम्र के हैं। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ नौजवान मौजूद हैं, पोटेंशियल है। अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, सलाहियत दी है और इस सलाहियत का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इस सलाहियत का अगर इस्तेमाल हो तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जिन खजानों से नवाजा है, पाकिस्तान में पोर्ट्स हैं, समंदर हैं, पाकिस्तान में दरिया हैं, ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, यहाँ लहलहाते खेत हैं, यहाँ की जमीन सोना उगलती है, यहाँ मिनरल्स हैं, यहाँ मार्बल है, यहाँ क्रोमाइट है, यहाँ ग्रेनाइट है, यहाँ कीमती पत्थर हैं, यहाँ सोना निकलता है, यहाँ ऑयल निकलता है, यहाँ से गैस निकलती है। इतना रिच ये मुल्क है, लेकिन चंद लोगों ने इसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, जिसके नतीजे में हमें हमारा हक नहीं मिलता। तालीम का हक हर गरीब का हक है, हर अमीर का हक है। ये दौलत की बुनियाद पर तकसीम नहीं की जाती। जिस मुल्क में, जिस कौम में ये तालीम एक कमोडिटी बन जाए, काबिल खरीद और काबिल फरोख्त चीज बन जाए, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। बदकिस्मती से हर गुजरते दिन के साथ तालीम का कारोबार अपने उरूज पर है। तालीम काबिल खरीद और काबिल फरोख्त चीज है और जिसके पास जितना पैसा, उसके पास इतनी अच्छी डिग्री। कहां जाएंगे गरीब लोग, कहां जाएंगे मिडिल क्लास लोग, आम लोग कहां जाएंगे, कहां पढ़ेंगे? अपने बच्चों को लोग कैसे पढ़ाएंगे? इन तालीम इदारों की फीस नहीं दे सकते। अभी बात हो रही थी, आईटी का जमाना है, दुनिया में तरक्की होने जा रही है, एआई उसमें तरक्की हो रही है, पूरी दुनिया इसके ऊपर फिक्रमंद है। जो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो भी अपनी पावर कंजम्पशन इसलिए बढ़ा रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि बड़े बड़े डेटा सेंटर उन्हें चलाने पड़ेंगे, उनकी कंजम्पशन डबल हो जाएगी। और हमारा हाल यह है कि जो बिजली हमारी मौजूद है, कैपेसिटी, उस कैपेसिटी पर इसलिए नहीं चलता कि कंजम्पशन कम है, लाइनें ठीक नहीं है, और जो बिजली बनती ही नहीं है उसके पैसे आप और मैं और आपके वालिदैन बिजली के बिलों में अदा करते हैं। जो बिजली बनती ही नहीं है उसकी कैपेसिटी पेमेंट हम अदा करते हैं। इससे बढ़कर क्या जुल्म होगा? बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, बच्चों की फीस दें, ट्रांसपोर्ट दें, पेट्रोल की कीमत दें, क्या क्या करें लोग? जबकि हमारा हक है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए।
नौजवानों में मैं आपसे एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं, जो हमारे लिए मुमकिन था वो हम कर रहे हैं आपके लिए। हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाएं। हम चाहते हैं कि हर नौजवान के हाथ में तालीम का जेवर हो। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, लेकिन जाहिर हमारी भी एक कैपेसिटी है। हम जमात हैं, हुकूमत नहीं है। हम एनजीओ है, अल खिदमत रियासत नहीं है। हमारे पास टैक्स की कलेक्शन नहीं आती, चंदे आते हैं, लोगों का ताउन होता है और हम मिलकर काम करते हैं ईमानदारी से। लेकिन रियासत के पास वसाइल मौजूद हैं। सिर्फ सिंध हुकूमत का तालीम का बजट 481 अरब रुपए का है। कितना है? 481 अरब रुपए। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। आप सोच सकते हैं कि पैसों की कमी नहीं है। ये सिंध हुकूमत पर 18वीं तरमीम के बाद विफाक से पैसे ले लेती है, लेकिन ये पैसे नीचे बल्दियाती इदारों को मुंतकिल नहीं करती, इख्तियारात नहीं देती। तालीम पर करप्शन होती है। भर्तियों का एक सिलसिला है जो चल रहा है। जाली किस्म के टीचर्स भर्ती होते हैं। गोश्त स्कूल बने हुए हैं। 48-49 स्कूल इस सूबा सिंध में हैं। कोई एक स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें जरदारी साहब तो छोड़िए, बिलावल साहब तो छोड़िए, और उनके खानदान के लोग तो छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी का कोई आदमी, मैं कहता हूं कि सिंध सेक्रेटेरिएट का कोई क्लर्क भी पाकिस्तान के इस सूबा सिंध के किसी स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल नहीं करवाना चाहता। इसलिए नहीं करवाना चाहता कि उसे मालूम है कि सिंध सेक्रेटेरिएट में करप्शन का कौन सा कारोबार चलता है, जिसके नतीजे में हमारी तालीम ये तबाह कर रहे हैं, हमारी सेहत की सहूलतें बर्बाद कर रहे हैं, और हमारे बच्चों को तालीम नहीं दे रहे हैं। ये तो इनके हाथ में ये रहने दें। इन नाक जो बनकर बैठे हुए हैं हमारे खजाने पर, हमारी खून पसीने की कमाई से जो खजाना बनता है, इनके हाथों में हम दिए रखें और हम समझें कि हमारे हालात सुधर जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारी इस तहरीक में आप अपना हिस्सा डालें, जो पाकिस्तान के नौजवानों के हक की तहरीक है, तालीम के हक की तहरीक, सेहत और इलाज के हक की तहरीक, ट्रांसपोर्ट के हक की तहरीक। ये हमारी बच्चियों और हमारी खवातीन की किस्मत में चिंचियों के धक्के नहीं है। इनको इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट मिलनी चाहिए। इनको महफूज ट्रांसपोर्ट, महफूज तालीम और महफूज रोजगार चाहिए। ये क्या तमाशा है कि इनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। हर वक्त परेशान कि कोई जो है वो हमारे साथ कोई बदतमीजी कर दे, कोई हैरेसमेंट कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इदारा नहीं है जहां पर जाकर इज्जत के साथ आप कंप्लेंट कर सकें। जमात इस्लामी ये चाहती है कि आप अपने हक और इख्तियार की इस तहरीक में आप हमारा साथ दें। हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपनी पार्टी के लिए हम आपसे नहीं मांगते, हम आपके लिए और आपके आने वाली नस्लों के लिए मांगते हैं। आए हमारा साथ दें ताकि इल्म की और तालीम की ये तहरीक आगे बढ़ सके और पाकिस्तान वाकईतन वो पाकिस्तान बन सके जो पूरे खित्ते को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करे। हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? क्या कमी है हम में? और हमारे बाकी मुल्कों में क्या उनमें सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि जिसमें उनकी एक्सपोर्ट 227 बिलियन डॉलर हो जाए और हम 3 बिलियन डॉलर करके खुशियां मनाएं कि हमने इजाफा कर लिया है। तो भाई यहां टैलेंट मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब जारी है। अब आपको बताएं कि छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम। 11 साल आमिना की डेटा साइंस के मैदान में शानदार कामयाबियां। नन्ही आमना यूनिवर्सिटी में भी तलबा को पढ़ा रही हैं। मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरज़्म आमना से मुलाकात करा रहे हैं उसामा मलिक अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। छोटी सी मैं बच्ची हूं पर काम करूंगी बड़े बड़े। ये है कराची की 11 साल डेटा साइंटिस्ट आमना शहजाद। आमना ना सिर्फ डेटा साइंस के मैदान में काम कर रही हैं बल्कि अपनी उम्र से बड़े तलबा में इल्म की रोशनी फैलाने में मसरूफ़ हैं। आमना का कहना है कि पहले लोगों के जुमलों से दिल आज़ारी होती थी, लेकिन अब अज़म कर लिया है कि कुछ करना है। और कुछ बोलते कि इतनी सी उम्र में कर लिया, अभी तो आपकी खेल कूद की उम्र है और आपको नहीं आना चाहिए था। आप अभी रिलैक्स करें और इस फील्ड को, मतलब आपने इतना कर लिया बस ठीक है, लेकिन अभी आप थोड़ा रिलैक्स करें। मुझे इस तरह से लोग बोलते, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा मैं लेती थी कि इस तरह से बोले, मैं थोड़ा सा डिसहार्ड भी हो जाती थी, लेकिन अब मैं डिसहार्ड नहीं होती। अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, अब मैं कर दिखाऊंगी उन लोगों को जो ये कह रहे हैं। आमना ने शिकवा किया कि पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रवि के बाइस काम में मुश्किलात हैं।
प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि अभी मैं अपनी मेरी मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग चल रही है, तो मैं वो बेसिकली लाहौर बेस है, तो मैं उनको मैं रिसर्च पर काम कर रही होती हूँ, तो मैं फाइल शेयर करना या कुछ पूछना होता है तो नेट कभी बंद हो जाता है या नेट की वजह से बहुत ज़्यादा इशू होता है। होनहार आमना के वालिदैन उनके काम और मकाम पर फख्र महसूस करते हैं। पाकिस्तानी यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट आमना शहजाद का कहना है कि अगर अज़म किया जाए तो हर अमल मुकम्मल किया जा सकता है। इन्हीं की तरह दीगर बच्चे भी इस मकाम पर पहुंच सकते हैं। कैमरामैन नवेदुर रहमान के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21।